اگست کے اس پرحبس دن گراؤنڈ میں ہجوم کافی کم تھا۔ دانی حسب سابق چوبی جنگلے کے باہر کھڑا اپنی پسندیدہ مناظر دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اسکول سے گرمی کی چھٹیاں اب موسم کی تپش کے باعث لڑکے کم ہی کھیلنے آیا کرتے ہیں۔ لڑکوں نے کھیلنے کا آغاز کیا۔ پہلی باری ختم ہو گئی۔ اگلی اننگز کے دوسرے ہی اوور میں تیسری گیند گراؤنڈ کے باہر آ گئی۔ دانی نے اسے پکڑا اور تیزی سے اندر اچھال دی۔ اگلی دو گیندیں قدرے سست روی سے کھیلی گئی۔ آخری گیند پھینکنے سے قبل ہی ایک لڑکا چونک کر کونے میں بینچ پر رکھے اپنے سامان کی جانب دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے آگے بڑھ کر ایک موبائل فون نکال کر اپنے کان سے لگا لی۔ دانی کو اس کے الفاظ تو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، البتہ چہرے پر کافی اجلت دکھائی دینے لگی۔ چند ثانیوں میں وہ اپنے ساتھیوں سے ہاتھ ملاتا گراؤنڈ کی دوسری جانب باہر نکلا اور کسی سمت روانہ ہو گیا۔ دیگر لڑکے اب قدرے مایوس دکھائی دینے لگے۔ دانی کو صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ اس لڑکے کو یقیناً گھر سے بلاوا آیا تھا۔ اب اس کے جانے کے بعد دونوں اطراف کے کھلاڑی متوازن نہیں رہے تھے۔ وہ کھیل کے تعطل سے مایوس ہونے لگا۔ کچھ ہی پل گزرے کہ خسر پھسر کرتے لڑکے اس کی جانب متوجہ دکھائی دینے لگا۔ اس سے قبل کہ دانی کچھ سمجھ پاتا، ایک 11-12 سالہ لڑکا اس کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ ہمارے اسکول میں تو نہیں پڑھتا، کبھی دیکھا نہیں ہے تجھے یہاں۔ لڑکے نے اس کا چہرہ اور حلیہ دیکھ کر تحکمانہ انداز میں دریافت کیا۔ دانی کی بے حد عام شخصیت مقابل کے انداز میں خواہ حاکمیت و حقارت پیدا کر دیا کرتی تھی۔ میں یہاں رہتا ہی نہیں جی، وہ اپنے مخصوص بے نیازی سے بولا۔ نورپور سے آتا ہوں یہاں۔ تو ہر روز نورپور سے یہاں آتا ہے پیدل؟ لڑکے نے آس پاس کوئی سواری نہ پا کر حیرت سے استفسار کیا۔ وہ اس پسماندہ ترین علاقے سے کافی حد تک بے خبر تھا۔ اہو جی، پیدل آتا ہوں، آپ سب کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں اور پھر اسی طرح واپس چلا جاتا ہوں۔ وہ لڑکا شدید بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا حلیہ نہایت دگرگوں تھا۔ پرانے میلے کپڑے کئی مقامات سے ادھرے ہوئے تھے۔ بالوں میں میل اور مٹی کا تناسب یکساں تھا۔ بہت پسند ہے تجھے کرکٹ؟ اس نے دانستہ طور پر دانی کے حلیے و نقوش سے نظریں چرائیں۔ اہو جی، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ دانی نے آنکھیں میچی۔ ہمارے ساتھ کھیلو گے؟ ہمارا ایک ساتھی گھر چلا گیا ہے، میچ پورا کرنے کے لیے ایک کھلاڑی چاہیے، عمر نامی اس لڑکے نے پیشکش کی۔ میں نے کبھی کھیلی تو نہیں، لیکن مولا قسم آپ کو مایوس نہیں کروں گا، دانی نے شدید سنسنی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، بس فیلڈنگ کرنا تم، گیند ہی روکنا ہے تمہیں، اور تو کچھ نہیں کرنا۔ عمر کی پیشکش برقرار تھی۔ دانی نے حامی بھر لی۔ عمر اب اسے گراؤنڈ میں لے آیا۔ دانی کو اپنے قدم لڑکھڑاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جوش سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ یہ کسے اٹھا لایا تو؟ بلہ تھامے ایک لڑکے نے ناگواری سے کہا۔ یہ ہمارا نیا کھلاڑی ہوگا، اب میچ تو کسی نہ کسی طرح پورا کرنا ہے نا، اس نے ساتھیوں سے کہا اور پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ تیرا نام تو پوچھا ہی نہیں میں نے۔ دانی کہتے ہیں جی مجھے۔ اس کے بے نیازانہ جواب پر دیگر لڑکوں نے بھی اپنا اپنا تعارف کروا دیا۔ دیکھ یار، ابھی سچویشن یہ ہے کہ ہم 10 اوورز کا میچ کھیل رہے ہیں، 55 سکور بنایا ہوا ہے، اب یہ عبدالرحمان کی ٹیم کھیل رہی ہے، ہم نے یہ میچ کسی بھی صورت میں جیتنا ہے۔ عمر نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اس نے تابعداری سے سر ہلا دیا۔ میچ کا دوبارہ آغاز ہوتے ہی وہ کسی چیتے کی طرح مستعد دکھائی دینے لگا۔ اس کی عقابی نظریں گیند سے ہٹ ہی نہ رہی تھی۔ وہ اپنی جانب آنے والی ہر گیند کو کامیابی سے روک لیتا۔ اگلے اوور میں اس نے 15 رنز بچائے تھے اور ایک کیچ بھی کیا تھا۔ عمر کی ٹیم 5 رن سے وہ میچ ہار گئی تھی۔ واہ بھائی، کمال کر دیا تو نے۔ عمر نے اس کی پشت پر دوستانہ انداز میں ہاتھ مارا۔ شکریہ جی، آپ نے مجھے کھیلنے کا موقع دیا، وہ سادگی سے کہنے لگا۔ کیا مطلب؟ تو اپنے اسکول کی طرف سے کھیلتا نہیں ہے کیا؟ عبدالرحمان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہمارے نورپور میں تو کوئی اسکول ہی نہیں ہے جی، اور میں نے آج پہلی دفعہ کرکٹ کھیلی ہے، اس نے معصومیت سے بتایا۔ نہ کر یار، تیرا کھیل دیکھ کر تو مجھے لگا تھا کہ تو بہت پہلے سے کھیلتا آ رہا ہے۔ عبدالرحمان کو مزید اچنبھا ہوا۔ نہیں جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے سر دائیں سے بائیں جھٹکا۔ عبدالرحمان کی ٹیم میچ ہارنے کے بعد حسب دستور فاتحین کو ناشتہ کروایا۔ دانی کو بھی خود بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے نان چنے زندگی میں آخری بار اس سے قبل کب کھائے تھے۔ اچھا جی، میں چلتا ہوں، کل پھر آ جاؤں کیا؟ دانی نے آج سے پوچھا۔ کل نہیں، جمعے کو ہمارا میچ ہے یہاں، میں تیرا انتظار کروں گا۔ عمر کی اس بات نے دانی کی خوشی دو چند کر دی اور الوداعی مسافے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس سے اب یاسر سے ملاقات کرنی تھی۔ وہ اپنی ہر خوشی اور غم میں بڑے بھائی کو بہر صورت شریک رکھتا تھا۔ دانی کے لیے جمعے کا انتظار کرنا محال تر تھا۔ وہ ایک ایک گھڑی گن گن کے گزار رہا تھا۔ آنکھیں ہمہ وقت ایک ہی خواب سے بوجھل رہتی تھیں۔ وہ خود کو گراؤنڈ میں کھیلتے اچھلتے ہوا میں گیند کو لپکتے دیکھتا اور شور و غل میں اپنے نام کی پکار سنا کرتا۔ اس سے اب روٹی کے ساتھ 1-2 آلو کی کاشیں کم نہ لگتی، نہ ہی کم نمک مرچ کی دہائیاں دیتے بہن بھائیوں کا شور اثر کرتا۔ جمعے کے روز وہ منہ اندھیرے ہی گھر سے نکلا اور گراؤنڈ کی جانب چل دیا۔ گرمی کے پیش نظر اس نے ایک زردی مائل بنیان اور نکر پہن رکھی تھی۔
बनियान में 3 सुराहों की इसे मुतलक परवाह नहीं थी। चप्पल भी हस्ब साबिक टूटी हुई थी। हाँ, अगर वो जी सलामत थी तो वो इसकी तवानाई और जोश था। ग्राउंड के पास पहुंचकर वो हस्ब आदत एक सानिया के लिए चौबी जंगले के पास रुका और फिर मुकम्मल इस्तेहकाक से अंदर दाखिल हो गया। आज इसके कदम जोश और सनसनी से भरपूर थे। वो अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए एक बेंच पर जा बैठा। वो फटते ही हल्की रोशनी फैलने का आगाज हुआ तो ग्राउंड में दीगर लड़कों की आमद का आगाज हो गया। उमर इसे देखते ही इसकी जानिब लपक आया। मुझे यही वहम था कि तू आएगा भी या नहीं, ऐसा ना हो कि तेरी नींद ही ना खुले। मैं तो इस दिन से सोया ही नहीं जी, आज के दिन का बहुत ही इंतजार था मुझे, वो मखसूस सादगी से बोला। उमर इसके अंदाज पर मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर में दोनों टीमें मुकम्मल हो गई। दोनों ही जानिब 5-5 खिलाड़ी थे और आज इन्हें 7 ओवर्स का मैच खेलना था। उमर टॉस हार गया। अब्दुर्रहमान की टीम ने पहले बैटिंग का फैसला किया। दानी ने अपनी जगह संभाल कर जूती उतारी और इसे एक जानिब रख दिया। अब वो खुद को मजीद पुरएतमाद महसूस कर रहा था। उकाबी नजरें गेंद पर मरकूज थी। मुकाबिल टीम को 7 ओवर्स मुकम्मल खेलने का मौका ही न मिला। दूसरे ओवर में दानी ने अपने दाएं जानिब होता लगाकर कैच किया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इसने एक और खिलाड़ी को रन आउट करवा दिया। चौथा ओवर फैसला कुन साबित हुआ। अब्दुर्रहमान उमर के हाथों बोल्ड हुआ और आखिरी खिलाड़ी भी दानी के हाथों कैच आउट हो गया। इन्हें 30 रन का हदफ मिला था। उमर बेपनाह खुश था। इसने बहसीयत ओपनर खेलने का फैसला किया और इसकी टीम ने 5 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर ही हदफ पूरा कर लिया। दानी बेपनाह खुश था। उमर ने जोशो मोहब्बत में इसे गले लगा लिया। तो कमाल का बंदा है यार, कसम से बड़ा ही कमाल है। इस पे सादगी पर दानी झीम गया। चल आ नाश्ता करके आते हैं, आज हलवा पूरी और चने खिलाने हैं दूसरी टीम में। उमर के बताने पर दानी के मादे में ईंधन पैदा हुई। इसे शिद्दत भूख का एहसास हुआ। हलवाई को नाश्ते की मिकदार बताकर अब वो एक दूसरे से गुफ्तगू में मसरूफ हो गए। दानी को कई लड़कों की नज़रों में अपने हुलिये और लिबास के लिए हकारत नजर आ रही थी। उन्होंने दानी को यकसर नज़रअंदाज किया हुआ था। उमर ने यह सूरत हाल भांप ली और हल्के फुल्के अंदाज में इससे दरियाफ्त करने लगा। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? मास्टर साहब मर गए, अब पढ़ाने वाला कोई भी नहीं। दानी अफसुर्दा हुआ। अच्छा, एक बात मानोगे मेरी? मैं जानता हूँ कि गर्मी बहुत है, लेकिन मैच खेलने के लिए कपड़े दूसरे पहन कर आया करो, वो नरमी से बोला। मेरा गर्मी में यही लिबास होता है, शर्ट सिर्फ सर्दियों में मिलती है मुझे। ये निक्कर भी 2 साल से पहननी शुरू की है, वरना इससे पहले कपड़ों के बगैर ही इधर उधर फिरता था। इसके सादगी भरे इंकशाफ ने उमर को हैरान कर दिया। यकलख्त इसकी नज़र दानी के पाँव पर पड़ी। ये क्या हुआ है यार? वो तशवीश से बोला। कैच लेते हुए मुड़ गया था। घर जाकर चूल्हे की राख इस पर लगाऊंगा, खुद ही ठीक हो जाएगा, इसने बेपरवाही से बताया। उमर का मुंह खैरत से नीमा हो गया। इसी स्नाह में नाश्ता भी आ गया। दानी ने एक पूरी और थोड़ा सा हलवा खाया। बाकी पैक करवा दो, अभी इतनी ही भूख है, इसने उमर से इल्तिजा की। पिछली दफ़ा भी इसने यूं ही किया था। उमर इतना तो भांप गया कि ये नाश्ता वो अपने घर में किसी के लिए पैक करवाया करता है। इसने एक की बजाय 2 पूरियां पैक करवा दी। अगला मैच हमने इतवार को खेलना है, याद से आ जाना, उमर ने इसे शापर थमाते हुए कहा। हाँ जी आ जाऊँगा, बस अब मैं चलता हूँ। वो उजलत में कहता हुआ यासिर के पास रवाना हो गया। आज इसके पास भाई को बताने और खिलाने के लिए खुसूसी मवाद था। कदमों में तेजी तो आनी ही। इतवार के रोज़ वो अली सुबह अपने मतलूबा मकाम पर पहुंच गया। इस दिन मोटरसाइकिल पर उमर भी वक्त से पहले चला आया। मोटरसाइकिल से उतरकर इसने किसी मर्द से चंद लम्हे गुफ्तगू की और दानी की तरफ चला आया। इसके हाथ में एक शापर था। इब्तदाई लैक्स लैक के बाद इसने शापर दानी को थमाते हुए कहा, बाकी लड़कों के आने से पहले ये कपड़े और जूते पहन लो। दानी का चेहरा सुर्ख हो गया। भीख दे रहे हो मुझे? वो भिंची हुई आवाज़ में बोला। बिल्कुल नहीं यार, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि किसी को तेरा मजाक उड़ाने का मौका ना मिले। दानी इसकी बात का असल मकसद समझ गया। वो लड़के यकीनन गुस्से और हसद के बायस इसकी पीठ पीछे कुछ न कुछ हर्जा सराई करते होंगे। इसने शापर खोला तो एक इस्तेमाल शुदा ताहम कदर बेहतर हालत की टी शर्ट निकाल कर पहन ली। कुछ ही देर में दीगर लड़के भी इकट्ठे हो गए। अपनी तवानाई महमीज करने का सोचते हुए दानी को अंदाज़ा ही ना हो सका कि उमर की निगाहें बार बार ग्राउंड के अक्कम में मौजूद चंद दरख्तों की जानिब उठ रही हैं। मैच का आगाज़ हुआ। उमर की टीम ने पहले बैटिंग करके 52 स्कोर बनाए। दानी के खेलने की आज भी नौबत नहीं आई। अलबत्ता फील्डिंग में इसने खूब जान मारी। एक कैच करके तकरीबन 12 रन भी बचाए। ताहम मकामी टीम ने हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। उमर ने अपने दीगर लड़कों को फातेह टीम के साथ भेजा और ख़ुद दानी के साथ बेंच पर बैठ गया। हम हार क्यों गए? मैंने तो पूरी कोशिश की अपनी जानिब से। इसकी आंखों में आंसू थे। कोई बात नहीं यार, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। हमारी कोशिश पूरी थी, हो सकता है हमारे खेल में कहीं कोई कमी रह गई हो, उमर ने नरमी से समझाया। ये चीता तुझे कहाँ मिल गया उमर? इसकी समात में एक आवाज़ पड़ी तो वह चौंक कर पीछे देखने लगा, जहाँ एक खुदेड़ उमर आदमी मौजूद था। ये वही शख्स था जो उमर को ग्राउंड छोड़ने आया था। वो जिस्मानी तौर पर मुस्तैद और बेहद तवाना था। मैंने आपसे कहा था ना अंकल, कमाल लड़का है ये, उमर ने जोश से कहा, और इसके लिए बेंच पर जगह बना दी।
इसके जिस्म में हड्डियों की जगह स्प्रिंग तो फिट नहीं है। पता नहीं जी, शायद मार खाकर हड्डियां स्प्रिंग बन जाती हैं। इसके सादगी भरे इंकिशाफ ने उन दोनों को लम्हाती तौर पर शल कर दिया। स्कूल क्यों नहीं जाते कहीं? मुस्तफ़ा नामी इस शख्स ने पूछा। घर में खाने के पैसे नहीं, स्कूल के खर्चे कौन उठाए? इस बात ने भी मुस्तफ़ा को चौंका दिया। ताहम वो मौजू गुफ्तगू तब्दील करते हुए उमर से मुखातिब हुआ। अपना बैट और बॉल लेकर आ जरा, इसकी बैटिंग भी तो देखो ज़रा कैसी है। उमर ने फ़ौरन मतलूबा चीज़ें थमा दी। मैंने कभी बैटिंग या बॉलिंग नहीं की जी। वो एकदम घबराया। कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, बस अपना जहन पुरसुकून रख और खेल के दिखा मुझे, मुस्तफ़ा ने नरमी से कहते हुए गेंद उमर को थमा दी। दानी क्रीज पर खड़ा हो गया। एक सानिये के लिए इसने आंखें बंद की और बल्ले के दस्ते पर गिरफ्त मजबूत कर ली। उमर की पहली गेंद इसके बल्ले के पास से होती हुई निकल गई। दूसरी बल्ले पर आई तो इसने दिफाई अंदाज में रोक ली। तीसरी गेंद इसने लेग स्टंप से छोड़ दी। चौथी गेंद को इसने ऑन साइड पर खेल दिया। पांचवी और छठी गेंदें दरख्तों तक जा सकी। ये ले, अब बॉलिंग करा। मुस्तफ़ा ने बल्ला उमर को थमाकर गेंद इसे दे दी। दानी ने गेंद को दोनों हाथों में थामते हुए एक बार आंखें फिर बंद कर ली। तसव्वुर में एक शबीह उभरी। इसने चंद कदम बढ़ाए, दोनों हाथ पहले ऊपर उठाए, बायां हाथ फिजा में साकित रखा और दाएं को मखसूस अंदाज में घुमाते हुए गेंद फेंक दी। उमर ने मुहतात अंदाज में बिल्कुल सीधा खेल दिया। अगली 5 गेंदों का घुमाव भी शानदार रहा। मुस्तफ़ा ने उमर को खेल रोकने का इशारा कर दिया। इसके चेहरे पर अब संजीदगी तारी थी। देख काके, तुम मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रहा? मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि तूने आज गेंद और बल्ला पहली दफ़ा पकड़े हैं। मैं झूठ क्यों बोलूँगा जी, टीवी पर खेलते हुए देखा है बस। आज भी जो देख कर आया वही दोहरा दिया। इसने उलझ कर जवाब दिया। मैं तेरे वालिद से मिलना चाहता हूँ, जल्द अज जल्द। वो मुस्तरब हुआ। मिलवा दूंगा जी, वैसे आज घर पर ही थे अबू, बुखार की वजह से काम पर नहीं गए। इसे याद आया। ठीक है, बैठो मोटरसाइकिल पर। मुस्तफ़ा ने ताहिर मुनासिब ना समझी। दानी ने इस बात में सर हिला दिया और उमर के जूते और शर्ट उठाकर इसे थमा दी। मैं इसे घर नहीं ले जा सकता, बहन भाइयों में बहुत फसाद खड़ा हो जाएगा। उमर ने भी तफहीमी अंदाज में सर हिला दिया और वो दोनों अशिया छापर में डालने लगा। मुस्तफ़ा अब दानी को लिए नूरपुर की तरफ गामजन हो चुका था। बाबर और मुस्तफ़ा की मुलाकात ज़्यादा खुशगवार साबित न हुई। बाबर ने काफ़ी सर्द मोहरी से इसका इस्तकबाल किया था। मुस्तफ़ा ने इसका रवैया नज़रअंदाज करते हुए दानी को स्पोर्ट्स कोटा में तालीम दिलवाने की पेशकश कर दी। किताबों, कापियों और यूनिफॉर्म का खर्च भी इसी के ज़िम्मे होता। आप हमारे घर आए, हमें इज्जत दी, आपका शुक्रिया, मैं सोचकर जवाब दूंगा। बाबर ने दानिस्ता तौर पर उसे टाला। इसे इल्म था कि साफ इनकार की सूरत में मुस्तफ़ा इसे कायल करने के लिए दोबारा कोशिशों का आगाज़ कर देगा। मुस्तफ़ा ने हुश हल्की से रुखसत तलब की। इसके जाते ही बाबर सहन में बैठे दानी पर पुल पड़ा। तुझे समझ में क्यों नहीं आती बात? कौन सा भूसा भरा हुआ है तेरे दिमाग में? एक बार की कही हुई समझ में क्यों नहीं आती तुझे कि फिरंगियों का खेल नहीं खेलना? वो इस पर घूंसे और थप्पड़ बरसाने लगे। छोड़ दे इसे, क्या कर रहे हैं? शहनाज की ममता जोश में आई। इससे इसकी औकात याद दिलवा रहा हूँ, बाबर ने भड़क कर कहा। ये सिर्फ खेलेगा ही नहीं, पढ़ेगा भी तो सही। काम करने में क्या मौत पड़ती है इसे? पूरा टब्बर खाने वाला है। मैं किस किस का पेट भरूं? तो मत भरे मेरा पेट, दानी ने सरकशी से कहा। ना दे मुझे कुछ खाने को, मैं खाए बगैर जिंदा रह लूँगा, लेकिन खेले बगैर नहीं रह सकता। मैं इस क्रिकेट को नहीं छोड़ सकता। बाबर एक दफ़ा फिर इस पर पुल पड़ा। दानी ने इसका हाथ रोक लिया। मैं फीस या खेल के पैसे नहीं मांग रहा किसी से। अगर मुझे क्रिकेट खेलने से रोकना है तो जान से मार दे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। छोड़ दे इसे इसके हाल पर। अगर कुछ बनना चाहता है तो बन जाने दे। शहनाज ने इल्तिजा की। जहन्नम में जाओ तुम सब। तुम माँ बेटे को एक बात समझ में ही नहीं आ रही कि हम गरीब हैं। गरीब की किस्मत में धक्के ही होते हैं। गरीब अगर किस्मत बदलने की कोशिश भी करे तो कहीं ना कहीं मुकद्दर धोखा दे जाता है। वहाँ अपने लगा। ये सिर्फ आपकी सोच है, ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हर बार ऐसा ही होता हो। मैं अपना मुकद्दर बदल कर दिखाऊंगा। दानी के इस जवाब पर बाबर ने उसे ज़ोरदार तमाचा रसीद किया और तन फन करता हुआ घर से निकल गया। मुस्तफ़ा इसकी स्कूल आमद से बेहद खुश था। इसने वादे के मुताबिक दानी को यूनिफॉर्म, जूते और किताबें बिला मुआवजा फराहम कर दी। हर टीचर से इसका ज़ाती तारुफ खुद करवाया और छुट्टी होने के बाद इसे स्कूल से मलिक ग्राउंड में ले गया। इतनी बड़ी ग्राउंड, इसकी आंखें हैरत से करीबन फटने वाली हो गई। आंखों को तरावट देते सब्जे और हमवार कतः ज़मीन ने इसे बहुत मुतासर किया। टीवी में तो वो बहुत छोटी दिखाई देती है। टीवी में जितनी दिखाई देती है ये अब भी इससे छोटी है काके। मुस्तफ़ा इसकी बेसाख्तगी पर हंसते हुए बोला। तेरा खेल देखकर यकीन नहीं होता कि तूने अभी अभी खेलना शुरू किया है, लेकिन फिर तेरी ये सादगी यकीन दिलाने लगती है। मैं क्यों झूठ बोलूँगा जी, वो बेबसी से बोला। मुस्तफ़ा इसे कोने में रखी बेंच पर ले गया। वो पिछले कई सालों से यहाँ स्पोर्ट्स टीचर था। बहुत से बच्चों को खेलते देखा है, लेकिन तेरे जैसा टैलेंट पहले कभी नहीं नज़र से गुजरा। इसने भी साफ गोई से कहा तो दानी झीप सा गया। एक और बात कहूँ, तेरा खेल बहुत रफ है, इससे इसी अंदाज में खेलते रहना, कोई पकड़ भी नहीं सकेगा तुझे। मैं ऐसा ही करूँगा जी, इसने यकीन दिलाया। कल से स्कूल की छुट्टी के बाद रोज़ाना 3 घंटे यहाँ प्रैक्टिस करनी है। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग को रोज़ 1 घंटा। मेरी एक बात याद रखना,
ہر کامیابی کے پیچھے انتھک محنت ہوتی ہے. جس روز تم نے محنت سے جی چرایا اور اپنی لگن میں کمی کی تمہارا زوال اس دن کوئی روک نہیں سکے گا. اس نے تنبیہ کی. ایسا کبھی نہیں ہوگا. میں دل لگا کر پریکٹس کروں گا اور کرتا ہی رہوں گا. دانی نے ایک عزم سے جواب دیا. مصطفیٰ نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور ایک بلہ تھما دیا. اگلے 3 گھنٹے میں دانی کو تکنیکی امور سمجھانے اور ان پر عمل کرنے میں کیسے صرف ہوئے اسے اندازہ ہی نہیں ہو. دانی اب گھر واپسی کے لیے تیار کھڑا تھا. کیسے جاؤ گے گھر؟ اس نے پوچھا. پیدل ہی. دانی نے مختصر جواب دیا. 1 گھنٹے کا راستہ ہے. طے کر لیا کرو گے کیا؟ مصطفیٰ کو حیرت ہوئی. آہو جی کر لیا کروں گا. اچھا ہے نا، پیدل چلنے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں. وہ سادگی سے کہنے لگا. جیتا رہے، بس یہی لگن برقرار رکھنا، بہت ترقی کرے گا. مصطفیٰ نے خلوص سے کہا. دانی الوداعی کلمات کہنے کے بعد رخصت ہو گیا.